चलिए, so see again, if there was a question bhai that when this number is divided by 9 let's say or 8 let's say, then it would be amazingly difficult to solve this question. तब ये मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है. Then it becomes a maths question rather than an aptitude question, right? Because we know how to find a unit digit quickly using the methods of cyclicity. You have to divide things by 9. First of all, you have to know the number. अगर आपको लॉजिक भी लगाना है 9 की डिविजिबिलिटी का, और you have to actually divide. So it is an impossible question to solve because 2 raised to the power 175 would be impossible to solve on a piece of paper, at least within the time span. You will be able to solve it. पूरा दिन बैठ जाओ, not a big deal. ठीक है, डबल करते रहिए, right? That's the point. So ये वो चेस बोर्ड वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. Do you know the chess board problem? एक यार पंचतंत्र की कहानियां नहीं सुनी तुमने? Wherein a smart guy comes to a king and says, a king says कि कुछ तो करता है वो, king becomes happy with him and king says कि बोलो क्या चाहिए, I will give it to you. So the smart guy says, sir, I don't want much, right? Let's take a chess board. Let's put one speck of rice in the first block, then double it in the next one, then double it in the next one, so on and so forth, 264 times. और जितना वो होगा उतना दे दीजिए. And the Raja, because मैथ्स मैं पढ़ाने नहीं गया था उसको, he said कि अरे इतना कम क्या है, कोई बात नहीं ले लो, right? But the moment they start putting rice on those blocks, right, it became so amazingly large a quantity कि राजा को अपना पूरा राज बेचना पड़ गया, और फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए to give him the reward. So you have to think before you promise something. जैसे मैं प्रॉमिस कर देता हूँ, सोचता नहीं हूँ कि बहुत सारा करा दूंगा, फिर थक जाता हूँ बीच में, है ना? So you have to think before you promise something. So that is the idea here. तो 2 raised to the power 175 तो पता नहीं कितना ही आगे चला जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लॉक में जो चेस बोर्ड में कितना होगा 2 raised to the power 64 मैक्सिमम, और वो ही पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, तो 175 तो सोचो कितना होगा. So such questions are made in such a manner only. आपको पता होना चाहिए. Again, this is where we have to learn to differentiate also कि कौन सा क्वेश्चन करना भी है. I don't even want to try if instead of 10 it was 9 over there. I don't even want to try. करूंगा ही नहीं मैं, होगा ही नहीं, मुझे पता है. Because there is no normal sane method जिसमें आप ये सॉल्व कर सको without using a computer. ठीक है? So ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं. That's the point, and that is what you have to understand also. क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है. We will demonstrate आगे भी बीच में कुछ क्वेश्चंस को लेकर. ठीक है? Getting the point? चलिए. चलिए, let's try to do a quick work. Cyclicity of 1 to 9. Let's write it down. किसकी कितनी cyclicity है? जल्दी जल्दी. रिविजन हो जाएगा एक क्विक. Quickly write it down अपने रजिस्टर में. Cyclicity of 1 to 9. लिख लिया सर? जल्दी जल्दी लिखिए देख के. कोई श्लोक थोड़ी पढ़ने हैं, लिखना चालू करो. इधर ही देखूंगा मैं, उसका भी देख रहा हूं मैं. साइकिल, हाँ लिखिए फटाफट. किसकी साइक्लिसिटी 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है, किसकी 4 है. हाँ जी, ऑल डन. सबका हो गया? जल्दी जल्दी. 8 की साइक्लिसिटी मन में कर ले. 8 8 जा 64, 64 के बाद 4 आ गया, 8 4 जा 32. मन में कर ले फटाफट, लिखता चला जा. मैडम क्विकर, यू हैव टू बी फास्टर. पीछे देख के चीटिंग कर रही है. सी, इतने छोटे छोटे टास्क पे भी टाइम लग जाता है जब पहली बार करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू डू ऑल दिस हियर, so that it gets into your head कि करना कैसे है, क्या करना है. It is important. CSAT तभी होगा. Without understanding different ideas, बुक से पढ़ के CSAT इतनी आसानी से नहीं होता है, स्पेशली अगर डर लगता है. सर प्रीवियस क्वेश्चन में, हैं जी सर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया 2 raised to 175. सर अभी ये करो, प्रीवियस बाद में करेंगे, पहले ये करो. सर हो गया. जो होमवर्क दिया है वो करो पहले.
ऑल डन? किसका नहीं हुआ? अभी भी कर रहे हैं लोग। रशिका कितनी देर क्यों लग रही है? विधि देर क्यों लग रही है इतनी? अबे 5 कैसे आ गई तेरी साइक्लिसिटी? हाँ जी कबीर, क्या हो रहा है? दिव्यांक पीछे, दर्पी आपका सर पीछे, क्या नाम है आपका? हो गया? नाम क्या है? नरेश। हो गया नरेश? नाम हो गया है, काम नरेश है। हाँ मंजूश्री, एवरीवन डन? नाना प्रकार के नंबर लिख दिए हैं यहाँ पे। 6 की साइक्लिसिटी क्या निकली लोगों? 2 कैसे आ गई? 36 ही तो आ रहा है ना हर बार एंड में, 6 ही तो आ रहा है हर बार। सो सर 1 आएगा ना? यू शुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, यस, एंड 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 है। ये भी याद करें चीजें, ताकि पेन भी ना उठाना पड़े और काम जल्दी हो जाए, राइट? सो 1 2 4 के अलावा साइक्लिसिटी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? 1 की साइक्लिसिटी तो 1 ही है, एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय 1 1 ही आएगा। 5 की 5 25 125 हमेशा 5 रहेगा। 6 की 6 36 216 व्हाटएवर, वो भी वही रहेगा। 4 की 4 एंड 6, 4 एंड 6, व्हाट अबाउट 9 8 एंड 1 ऑल द टाइम? सॉरी 9 एंड 1, हाँ 9 एंड 1, यस। बाकी सबकी 4 पता ही है हमें, 2 4 8 6, इसकी क्या है? 3 9 7 1 7 9 3 1 8 4 2 6, राइट? फिर वापस आ 8 4 2 6, हाँ ठीक है 8 4 2 6, यस। सबका आया ये? सो ये कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप देखते रहेंगे इसको अपने रजिस्टर में, इसको ऐसे भी रख लीजिए, क्लब इट एंड राइट इट, सो दैट यू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग। लिख ले, क्लब इट एंड राइट इट, सो यू विल रिमेंबर कि किसका क्या देखना है। अब जरा देखें, ये 2 क्वेश्चन है, क्विकली विदाउट पिकिंग अप अ पेन क्या हम निकाल सकते हैं? विदाउट पिकिंग अप अ पेन, व्हाट इज दिस? ये बेसिकली, क्योंकि इसमें नहीं आता है ऐसे, दिस इज 9 raised to the power 4 raised to the power 5 raised to the power 6, this is 4 raised to the power 5 raised to the power 6 raised to the power 7. साइक्लिसिटी ऑफ 9 इज व्हाट? 2 होगी ना दोस्तों, आंसर 1 है। कैसे निकाला? इवन, इवन से मतलब 9 की पावर 4 का निकाल लिया। 9 की पावर 4 का निकाल लिया, ओके। एंड बाकी नहीं निकालेंगे? 4 की कैसे निकाल लिया? सिंपल है यार, देखो अगेन, थिंक थिंक थिंक, व्हाट इज हैपनिंग? 4 की साइक्लिसिटी क्या है? 2, मतलब अगर 4 into 4 करते हैं तो कितना आता है? 6, और 4 into 4 into 4 करते हैं तो कितना आता है? 4, फिर से कर दें 6, सो व्हाट डू वी सी हियर? 4 का एंड इधर भी 4 ही है, सो इफ यू मल्टीप्लाई इट even number of times you are getting 6 in the end. If you multiply it odd number of times you are getting 4. कह सकते हैं ये? There's only 2 possibilities. So when you multiply odd number of times 4 को, so what are we getting? 4 always. अब इसके बाद भी 4 एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 5 बार हो जाएगा, then that becomes 4 again, then 6 times 6 again, 7 times 4 again. So every time we are multiplying it odd number of times, the what remains is 4, unit digit 4 आ जाता है। Similarly, जब even number of times multiply करेंगे तो 6 बचेगा। या जितनी बार 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार किया मतलब even number of time किया।
अभी पहले ये तो समझो यार, आगे फिर वही बात है, तुम सॉल्व करने में लगे हुए हो समझने की बजाय। ठीक है, सॉल्यूशन तो मैं दे देता ना, फिर ये ज्ञान देने की क्या जरूरत थी मुझे? समझो बात को। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाइंग इट even number of times you are getting 6 and you are multiplying odd number of times you are getting 4। ठीक है, अब क्या इससे बता सकते हैं क्या हो रहा है? ये what is happening here? 4 की पावर 5 की पावर कुछ है, yes, so that means what are we multiplying? 5 into 5 n number of times, n number of times। 5 is odd, odd into odd क्या होता है? Odd, odd into odd क्या होता है? So you multiply odd any number of times, the final outcome will be odd only, no matter what happens. So that means 4 must be multiplying odd number of times. और जब 4 odd number of time multiply होता है तो cyclicity 4 होती है। Yes sir, क्लीन करते हैं, दोबारा देखेंगे। फोर टू द पावर 5, 5 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 7। यार ये लिखा था ना मैंने, ब्रैकेट इज दिस, फिर इसकी पावर 6 है, वही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 4, ये ब्रैकेट नहीं, मैंने इसलिए इसको ऐसे किया था, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, क्योंकि वहां लिख नहीं सकते, सुपरस्क्रिप्ट एक बार बनती है और फिर मना कर देता है, एक्सेल प्रिमिटिव है थोड़ा सा, दैट इज व्हाई आई रोट दिस, कि इसको ऐसे मत समझो ऐसे समझो, तो क्वेश्चन लिख के लाया था मैं। ठीक है, और दोनों तरह से कर लेते हैं, चलो दूसरा इंटरप्रिटेशन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन विल नॉट बी प्रिंटेड लाइक दिस पीपल, रिमेंबर दैट। व्हाट हैपेंस इज आई कैन नॉट प्रिंट 4 is to power 5 is to power 6 is to power 7 on a PPT, unfortunately, right? Because of the limitations of PPT, superscript एक बार बनता है, superscript का superscript नहीं बनने देता PPT. So I wanted to write this only, but it turned out to be this. He is right. अभी जब हम exponents पढ़ेंगे, so अगर ये ऐसा आता है, right? तो ये 4 is to power 5 into 6 into 7 भी लिखा जाता है, अगर ये ऐसा आता है, वो तो छोड़ देते हैं, but this cannot be written as that. Is this clear? ये अलग है, I will teach you in exponents, day after tomorrow there will be a class, don't worry about it. But generally जब ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट के बाद पावर पावर पावर, so it means you can do this also. Okay, but क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है, this is 5 raised to the power 6, this is 6 raised to the power 7, so that's a different game. So ये दो अलग अलग बन जाते हैं, दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं। Let's solve both. I meant to ask this, but this का उसका इंटरप्रिटेशन ये है। So अब इस केस में 6 की पावर 7 कुछ भी हो, 6 की पावर 7 है, so some outcome will be there. Let's say कुछ भी 2, 3, 2 कुछ भी होगा, मान लेते हैं। I am not counting, this is a wrong point. I don't want to solve it there. कुछ भी होगा, तो this will mean कि ये 5 की पावर ये बन जाएगा, क्योंकि 6 raised to the power 7 ये लिख दिया हमने। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लिख देता हूँ 4 is to the power 5 की पावर कुछ भी, ठीक है, एंड में 6 लिखा है बस मैंने स्मार्ट बनने के लिए, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, यूनिट पे तो 6 ही आना चाहिए, वो अलग चीज है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सो अब 5 की पावर कितनी भी हो, यस, तो मतलब ये जब होता है, व्हाट डू वी राइट, 4 into 4 into 4 into 4, 5 बार, अगर खाली 4 is to the power 5 होता। अब 5 raised to the power भी कुछ है, मतलब दिस नंबर विल बी वेरी बिग, बट वी आर एनीवे मल्टीप्लाइंग ओनली 5, सॉरी 4 raised to the power 5, 5, 5, ठीक है, तो 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, ऑड ही आएगा, ऑड ही आएगा ना। सो दैट मीन्स 4 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, और जब 4 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। गेटिंग द पॉइंट? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया अभी समझ में? हाँ, और शर्माइए मत, घबराइए मत, पूछिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि सॉल्व भी कर सकें। लेट्स से ये है, मान लेते हैं पहले, इससे एग्जैक्ट नंबर से पता चल जाएगा, दिस विल बी इजियर। यस, इट इज प्रैक्टिकली द सेम थिंग, ओनली 4 raised to the power 5 raised to the power 6 raised to the power 7, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई नो इफ आई मल्टीप्लाई 4 even number of times, I get 6 as the unit digit. I know if I multiply 4 odd number of times, I get 4 as the unit digit. This is all I know. I don't have to worry about anything else anymore. So let's say we pick up this one just as a replica, ताकि solvable भी हो. So if I see this, what am I seeing? That 2 raised to the power 3 है. So can I write this as 4 raised to the power 5 raised to the power 8? Yes, 2 raised to the power 3 is 8. So I solved this one first.
यहां पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 raised to power 7, बड़ी सी फिगर आएगी, तो वही मैंने किया था। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 4 raised to power 5 raised to power, लेट्स से ABCD कुछ बन रही है, सेम चीज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द सेम थिंग। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, अब फिर से बड़ा हो जाएगा ये 4 raised to power 8 टाइम्स, ये हो जाएगा ना ये, दिस इज वन। सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस इज 4 raised to power 5 into 5 into 5 ABCD टाइम्स, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा ये। अब 5 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं, 5 इज an odd number, when I multiply odd with odd, what do I get? Odd only, yes? तो अगर मैं odd into odd into odd करूंगा तो मतलब यहां भी odd into odd हो जाएगा, तो फिर से क्या आएगा? Odd only. So no matter how many times I multiply odd, the outcome will remain odd. Yes? Yes, बिल्कुल ठीक बात है। So I'm 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 4 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यार। अगर 4 की पावर 9 होता है तो हम 4 को 9 बाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। So यहाँ पे इस पावर का आउटकम कुछ तो ऑड नंबर आएगा, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 4 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। यस, कुछ भी है, हाँ जी, करना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं मैडम, करना कुछ नहीं है। कैसे आएगा बताइए डायरेक्ट? 5 कैसे है? 5 की पावर 6 की पावर 7 है ना मैडम, 5 कैसे है? हाँ, हमने क्योंकि वहां देखा था कितने मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह निकलेगा। आप निकाल लो, कोई इशू नहीं है, वैसे भी आप निकाल लोगे, बट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं हाउ द इवन ऑड का कॉन्सेप्ट, कि पेनी ना उठाना पड़े, पावर क्या है क्या नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। एवरी टाइम 5 जब लिखा है, अगर 5 की ऐसे मत रटो सर, अगर ऑड है तो आएगा 5 नहीं, अगर 3 भी लिखा है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो आउटकम ऑड है। 7 लिखा है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ऑड इंटू ऑड कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ पावर्स ऑड है। 4 की पावर ऑड अगर है, सिंपल एज दैट, 4 की पावर इफ इट इज ऑड यू गेट द नंबर एज ऑड, 4 बेसिकली 2। 4 की पावर अगर इवन है तो यू गेट 6। अब ये पावर आप फिगर आउट करनी है, ठीक है। 5 की पावर्स हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑड ही आउटकम आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो इवन आउटकम आएगा, ठीक है। सो आई कैन सिंपली से कि यार ये तो ऑड पावर्स बनेंगी, द मोमेंट आई सी दिस, ऑड पावर्स बनेंगी मतलब 4 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, द मोमेंट 4 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आई नो यूनिट डिजिट इज 4। सेम अप्लाइज ओवर हियर, दिस टाइम इट इज 4। क्या आउटकम आएगा इसमें? 9 की मल्टीप्लिसिटी क्या है? जब 9 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, एंड 9 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9। यस, साइक्लिसिटी, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 3 बार करोगे तो 9, 4 बार करोगे तो 1, 5 टाइम्स अगेन 9, 6 टाइम्स अगेन 1। सो सेम अप्लाइज ओवर हियर, दिस इज नॉट दिस इज 9 raised to power 4 raised to power 5 raised to power 6। So any number of times you multiply, yes, 4 into 4 into 4, the final outcome is going to be even number. We know that. The moment the final outcome is even number, I know I have to multiply 9 even number of times, right? And my answer would be 1. हाँ जी, क्या समझ नहीं आया? हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, exactly. यही देख के हो जाएगा कि यार ये तो फाइनल आउटकम तो इसका इवन ही आएगा या ऑड आएगा, अगर 5 हुआ या 7 हुआ 9 हुआ। एवरीवन क्लियर? प्रभुदेवा, आर यू सेइंग यस और नो? यस क्लियर, नो सर, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्लीपिंग, नॉट इवन हियर। हाँ, अंडरस्टैंड? क्या समझ में नहीं आया इसमें? हु हैज अ प्रॉब्लम स्टिल ऑनलाइन गाइस? सब क्लियर? क्लियर है, चलिए। तो मतलब सर फर्स्ट पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करने का, फर्स्ट पावर को One. साइक्लिसिटी डिवाइड करने का, कर लो डिवाइड, नहीं तो डिवाइड नहीं करने का, सीधा देख के बता दोगे, ठीक है। देख के भी बता सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, बट यू डोंट इवन हैव टू पिक अ पेन और इवन डू अ मल्टीप्लिकेशन इन योर हेड और डिवीजन इन योर हेड, जस्ट बाय लुकिंग एट इट। दिस इज हाउ एप्टीट्यूड इज बिल्ड, राइट?
कि पेन ही ना उठाना पड़े. The moment I see the question, I know the answer. कि इसका यही हो सकता है. There is only one possible answer. That is what we are here to build, and that will only happen when you attend the class regularly and practice all the questions that we are discussing. Right? By the end of this week, you would have done 210 questions. I'll give you 80 more questions. 160 वो हो जाएंगे. और क्लास में भी हम अभी 2 दिन में और 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 240 क्वेश्चन हो चुके होंगे हमारे बाय द एंड ऑफ दिस वीक. बट ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस ऑल दोज एंड मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज ट्राई टू गो बैक एंड सी देम वन मोर टाइम कि कहाँ क्या किया था, बिकॉज यू विल फॉरगेट. आई विल टेक अ टेस्ट. गलत फहमी तो नहीं होगी, वैसे टेस्ट तो लूंगा ही मैं. बीच में है ना टेस्ट, उसमें शेड्यूल्ड, गायब नहीं होना है किसी को. एवरी सिंगल स्टूडेंट मस्ट बी देयर इन द टेस्ट. हाँ जी. सर ये जो 9 की पावर 4 है, जी इसमें मैडम. 4 था तो इसमें हमारा इवन आएगा, और इवन आएगा तो हमारा 1 आएगा. जी. ऐसे यस पर मैडम, इनको तो बिल्कुल पता चल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. सर ये 1 और 9 का कंसेप्ट बताना एक बार वापस. बेटा 9 की साइक्लिसिटी क्या है? 2. 2 है. कैसे? 1 और 8 है ना दीक्षा? यस सर. हाँ, मतलब अगर मैं 9 1 और 9 सॉरी, हाँ, अगर मैं 9 इंटू 9 करता हूं तो 1 आता है. अगर मैं 9 इंटू 9 करता हूं तो 9 आता है. फिर मैं अगर 9 इंटू 9 करता हूं तो 1 आएगा. दैट मीन्स जब मैं 9 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई गेट 1. चाहे मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं 6 करूं, 8 करूं, 10 करूं. ठीक है ना? और जब मैं 9 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट 9. सो आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ मेनी टाइम्स 9 मस्ट बी गेटिंग मल्टीप्लाइड और 4 मस्ट बी गेटिंग मल्टीप्लाइड. सिंपल इज दैट. आई जस्ट हैव टू फिगर आउट दैट. ठीक है? आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था. डोंट वरी अबाउट इट. बट थोड़ा सा डिफरेंट आइडियाज भी विजुलाइज करोगे, ओनली देन यू विल बिल्ड दैट एप्टीट्यूड कि कैसे भी करा दो, आई विल डू इट. ठीक है? यू तो शुड बी 5 इंटू 6 इंटू 7 वाले से करेंगे तो? हाँ जी, कर देते हैं. अब अगर 4 रेज़ टू पावर 5 इंटू 6 इंटू 7 होता है ये, रादर देन व्हाट वी सॉ, सो ये भी आसान है. ऑड इंटू इवन इंटू ऑड है. कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो इवन से, आउटकम इज इवन ओनली. सो आई नो पावर इवन बनेगी. करने की भी जरूरत नहीं है. करना चाहो कर भी दो तो सिंपल ही है. ठीक है? 5 6 30 एंड 210. सो इवन है. तो 4 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 6. ठीक है अभिषेक? ओके सर. ऐसे यहां पे है. एनी नंबर ऑफ ऑड यू मल्टीप्लाई, अगर एक भी इवन आ जाता है उसमें मल्टीप्लीकेशन में, फाइनल आउटकम इज इवन ओनली. सो यहां पे मेरा आउटकम इवन आ जाएगा. ठीक है? इवन का मतलब 9 इंटू 9 1. लेस देन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन होते हैं. देख के ही आप मार्क कर सकते हो, बट ओनली व्हेन यू कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग थिंग्स. ठीक है? क्लियर? सर हाँ जी. सिर्फ ये जो पावर में फर्स्ट होती है वही देखनी पड़ती है ना, ऊपर वाली तो नहीं देखनी ना? वो भी मत देखो ऊपर वाली. फर्स्ट पावर देख के भी हो जाएगा, बट अगर देखना Okay, है तो ऊपर पूरी भी देख के आप कर सकते हो, जैसे अभी बताया. अगेन फर्स्ट पावर देख के ही हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट पावर विल डिफाइन एवरीथिंग इफ द आउटकम इज गोइंग टू बी ऑड और इवन. चलिए, सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस? क्या बनेगा? पेन मत उठाओ, 7. कोशिश करो. ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नो. 4 से, सॉरी, हाँ, साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है. क्या आउटकम है? 1. 2017 raised to power 2017. The remainder, if you divide this by cyclicity 7 की 4 है, मुझे पता है. I divide this by 4, I get an outcome as 1. Yes, 1 है मतलब 7. That's all. अब पेन भी नहीं उठाना है. पहले देख के लगता था कैसे करें. Practice, practice, practice. Try to aptitude Sir, papers वापस anywhere. Try to वापस- practice first of all in your head. Then pick up a pen if you're not able to solve it in your head. आप बताओ सर. सीधे बैठ जाओ पहले तो, जाग आएगी थोड़ी सी लाइफ में. हाँ, 7 की साइक्लिसिटी क्या निकाली आपने जब निकाली थी? 4. क्या क्या थे? 7 9 3 1. दैट मीन्स अगर 7 को फाइनली एक बार मल्टीप्लाई करें या 5 बार मल्टीप्लाई करें या
9 बार मल्टीप्लाई करें, सो 7 आएगा आउटकम। यस, तो कैसे पता चले? इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं हमेशा, और हम देखते हैं कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, करके भी दिखाया था, क्रॉस लग जाता है हर बार नीचे, यूनिट से ही एंड में फाइनल आता है। सो 2017 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 4 टाइम्स कितनी बार हो रहा है? 2016, और फिर एक बार और हो रहा है, तो 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता 7, तो क्या आउटकम आता? लास्ट वाला आता, अगर 4 टाइम्स हो जाता तो। अब एक बार और हो रहा है, तो क्या आ जाएगा वापस? 7। वही क्या है जो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। यस, क्लियर पीपल? चलिए क्विक रिवीजन था एक ये, जरा मरा सा। ये एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द सेट ऑफ नंबर्स, पीछे वालों के लिए ये है। कंसिडर द सेट ऑफ नंबर्स 18 रेज़ टू पावर 1, पेन नहीं उठाएंगे, रुकिए। 18 रेज़ टू पावर 1, 18 रेज़ टू पावर 2, 18 रेज़ टू पावर 3 अप टू 18 रेज़ टू पावर 300. How many numbers in this series end with the digit 4? Let's see if you can do it in your head. Otherwise, pen उठा लेंगे. Let's see if you can do it in your head. What is the concept that I have to apply first? Quickly बताइए. What is the first thing that should come to mind? ऐसे तो देख के डरने वाला क्वेश्चन है यार, ये कैसे करें, है ना? But what do we see? Sir, 18 raised to power 300. 3000 नहीं है. बताया तो ना, how many of these numbers end with the digit 4? इस पूरी सीरीज में how many numbers are there that ends with the digit 4? क्या मतलब है इसका? अगेन 150. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि बहुत साइक्लिसिटी का है। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज दैट शुड कम टू माइंड कि साइक्लिसिटी का है। आई और किसकी साइक्लिसिटी हो रही है? 8 की। व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 8? 4। यस, सो दैट मीन्स एवरी 4 टाइम्स 4 विल बी देयर इन द एंड वंस। हर 4 के सेट में होगा। ओ यारो, सैड ही कर देते तुम लोग। इसका एंड क्या होगा? यूनिट डिजिट 8। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2। इफ देयर वाज 18 raised to power 4, unit digit would be this. If there was 18 raised to power 5, unit digit would be 8 again. तो यूनिट डिजिट ऐसे बनते जा रहे हैं, सिंपल। सो आई नो फॉर अ सेट ऑफ 4 देयर इज 1 यूनिट डिजिट। सो 300 में कितने ऐसे सेट होंगे? 4 से डिवाइड कर लो, कितने हुए? 75। दैट मीन्स 75 टाइम्स पूरा डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 75 टाइम्स ये सेट रिपीट हो रहा है। सो दैट मीन्स 4 विल बी देयर 75 टाइम्स। यस, क्लियर? डॉक्टर साहिबा, कबीर, ऑनलाइन गाइज, इज दिस क्लियर? Yes, very good. Amartya, Lakshita, Vrishul, 75 is the correct answer. Yes, sir. Clear? अगर ये 300 नहीं होता और ये 302 होता, then 18 raised to power 302. So एक 4 और आ जाता. Yes, I would have done the same thing again. I would have first divided 302 by 4 to see the remainder. So 75 would have been the question. So 75 times it would be there. And then I would see 2 more times क्या बनता है? 8 बनता है, 4 बनता है, तो we would have added 1 more. Getting the point? Clear everyone? लोकेंद्र, पीछे सबको क्लियर है? नरेश, हाँ, that is the idea. ठीक है, किसी का भी आंसर दे सकते हैं। How many times 8? How many times 2? How many times 6? Any question can be asked, and this could be any Sir, digit, not 8. It could be a cyclicity of anything. Could be a cyclicity of 7. Could be a cyclicity of 3. Anything. सर एक एग्जांपल करने के लिए दो ना ऐसा। कर लो सर। ये 18 को हटाओ और लिखो 17 और पावर्स लिखो 1 से लेके 500 तक। सर 15 17। हाउ मेनी डिजिट्स? 7 की क्या होती है मल्टीप्लिसिटी? 4। क्या क्या होते हैं? 7, 9। So how many numbers are there which ends with the digit 9? 125. How many numbers are there that ends with the digit 9? पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से? Yes. So that means 125 सेट्स हैं. So 9 will be there 125 times. कितना सिंपल क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाया आधे लोगों ने, तो अब देख के डराते हैं बस क्वेश्चन.
सब्सटेंस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ जी आरुषि, आ रहे समझ में? क्लियर है विधि? एवरीवन पीछे? ऑल क्लियर? ऑनलाइन ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, देख के डर जाते हैं बस हम, और कुछ नहीं है। चलिए अब करेंगे नया टॉपिक, डिविजिबिलिटी। वैसे भी हो सकता था सर 18 रेज़ टू पावर 10 से शुरू कर लो, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। यस, वो 9 माइनस कर देना, सिंपल। 2 सेट्स माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग की 10 पे कितना बैठ रहा है, देन आई विल डू दैट। ओके, यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 9। सो फर्स्ट 9 में 2 बार आ रहा है, सो 2 कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड फर्स्ट वाला नहीं पूछा है, विच इज 8। 8 would be 3 times in the first 9 because 9th will also be 8 again. Getting the point? है ना? So अगर 8 पूछेंगे तो 3 माइनस करने, बाकी कुछ भी पूछें, 4 पूछें तो 2 माइनस करने, बिकॉज 9 तक 2 सेट बने पूरे और एक 8 और एक्स्ट्रा आ गया 9th वाला। Getting the point? Are you able to understand? सर Yes sir. सर आपने वो 18 रेज़ टू 302 वाला जो करवाया था, वो वाला समझ में नहीं आया था मुझे। सर उसमें 2 और एक्स्ट्रा है। हाँ सो पूरा एक तो 4 सेट, कितने 75 4 सेट्स बन गए, उसके बाद 2 बार और करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो क्या क्या आउटकम आएगा? सर एक बार रिपीट करो ना, एक बार वापस। क्लास के बाद समझो दोस्तों, इधर आते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। सर Let's talk about divisibility rules. What is a divisibility rule? Basically, if we can figure out just by looking at the number or some minor calculations, if a number is divisible by a given number or not. That is a divisibility rule. It makes our life immensely simple, right? There may not be a direct question on that, or there will be a direct question in a different format. कि 17 की power 27 plus 27 की power 27 when divided by 11, what do you get? We'll come to that also, but tomorrow. आज basic rules करेंगे, ठीक है? We'll do that as well, जिसमें ऐसे पावर वाले आते हैं, that what is the remainder when 17 raised to power 64 is divided by 11. We have seen such questions, so we'll do that as well. We'll do that tomorrow. Today let's learn the basic idea. So divisibility of 2. What is the concept of divisibility? कोई भी चीज 2 से डिवाइड कब होगी? When it is an even number? Yes. Can an odd number be divided by 2? And can any even number be divided by 2? Yes, as longer it is greater than 2, and all the even numbers are greater than 2 because 2 is the smallest even number. So basically अगर कोई भी A, B, C और end में 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0. Yes? So what are we seeing here is simply if the last or the unit digit is divisible by 2, then the number is divisible by 2. ये तो सबको पता ही है. We don't have to know this anyway. ठीक है? Is this clear? So 2 की divisibility यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 हो तो ये 2 की डिविजिबिलिटी बनती है, ठीक है? अब ऐसे ही 4 की समझ लेते हैं, पेयर में समझते हैं ताकि याद करना भी आसान हो जाए, हालांकि याद करने की जरूरत ना पड़े। 2 की जब यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, अब 4 में क्या है, 2 2 है, तो लेट्स टेक लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हो जाए। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। एंड 8 में 3 बार 2 है, तो हम लास्ट 3 डिजिट्स को ले लेते हैं, डिविजिबल बाय 8 हो जाए, ठीक है? सिंपल सीक्वेंस बना हुआ है, जितने 2 उतने डिजिट ले लो और नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 2 is only 1, so unit digit should be divided by 2. 4 has 2 2s, so last 2 digits should be divided by 4, not 2, 4. And 8 has 3 2s, last 3 digit should be divided by 8. That is the idea. पढ़ा होगा ये सबने, बट कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? What is the logic कि भाई लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से? What is the logic? Anyone? Let's see. Online guys, समझ में आ गया तो फिर कभी भूलेंगे नहीं बेसिकली। लुकेंद्र, नंबर को एक्सपैंड करेंगे, हाँ हाँ हाँ, 562 है,
आपने बोला 5 इंटू 10⁻² प्लस 6 इंटू 10 प्लस 2। चलो 4 से कैसे डिविजिबिलिटी बता रहे हैं? हाँ ये, हाँ क्योंकि इंटू 100 है, ये 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। इधर क्या करें, इधर कैसे बताओगे? मतलब ये डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं होगा, क्यों? अगर ये 542 होता तो 4 इंटू 10 हो जाता, पूरा डिवाइड हो जाता। फिर क्या करते? हिल गए फंडे, बचपन में पढ़ा था। 4 इंटू 10 करके हो जाएगा ना पूरा डिवाइड, फिर क्या करोगे? यही तो कह रहे हो तुम। अरे यू आर सेइंग 542 है, लेट मी राइट इट एज 5 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2। यही कह रहे हो? घबराओ मत, जागो, क्योंकि ये 5 इंटू 100 है, दिस इज डिविजिबल बाय 4 ऑब्वियसली, 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, 25 इंटू 4। ये 4 इंटू 10 है सर, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करें? हिल गए फंडे। सो पहली बात तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2 डिजिट्स। द मोमेंट यू सेपरेट देम, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल अराइज। ओके, दिस कैन बी वैलिड फॉर अ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 व्हेन वी से that this is always divisible by 2 because it is 100. This is always divisible by 2 because there is a 10. So the last digit must be divisible by 2 and hence the entire number will be divisible by 2. That is the logic of 2. But similar logic पे 4 की बात करनी थी हमें. So instead of doing this, 542 ही ले लेते हैं. What I have to do is I'll have to expand this. तो 5 into 100, can I write it like this? Yes, क्या है ये? 500 plus 42 है ना? So I'm writing it as 5 into 100 plus 42. So no matter what number you take, will this always be divisible by 4 because of this 100? This is 25 into 4, always divisible by. So the moment this number becomes divisible by 4, the entire number becomes divisible by 4, and that is the logic behind it. As simple as that. ठीक है? अब चाहे ये 4 डिजिट नंबर होता, लेट्स से 51542 होता, so what would I have done? I would have also added 1 into 1000 also. So 1000 is also divisible by 4, 250 into 4. So no matter how big a number is, आगे का तो सब will be divisible by 4 no matter what. It is only that comes down to the last 2 digit. So the test becomes, if you see the last 2 digits is being divided by 4, then the entire number will be automatically divisible by 4. Got it? Yes or no? Yes. Same idea applies to divisibility of 8. ठीक है? 100 8 से डिवाइड होता है? Is 100 divisible by 8? No. Is 1000 divisible by 8? Yes. So we need to take that. If the number is, ठीक है? So what will I do over here? I will see 4 into 1 lakh plus 5 into 10,000 plus 6 into 1,000 plus 232. Now you will see all this are divisible by 8 because this is what? 8 into 1225. So this will be 8 into 1250. एक 0 बढ़ गया बस. This will be 8 into 12500. So ये सारे तो 8 से डिवाइड हो ही रहे. All I have to figure out is कि अगर लास्ट का ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, so my entire number will be divisible by 8. Right? तो 232 को डिवाइड करके देख लो. ठीक है? सिंपल. So ये लॉजिक है. Why do we get what we get? If you understand things, it becomes easier. याद ज्यादा रह जाती हैं चीजें. You will not have to cram things. Yes, you remember better if you understand things. So this is the logic behind it. Simple as that. ठीक है? चलिए. So 2 का हो गया यूनिट डिजिट, 4 का हो गया
लास्ट 2, 8 का हो गया लास्ट 3. ठीक है. देन वी नो अबाउट 10 एनीवे. 10 का तो पता ही है, एंड में 0 होना चाहिए, या ये भी डाउट है किसी को? हाँ, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0. और 5 का भी पता है. 5 का क्या है? यूनिट डिजिट कैन ओनली बी 0 और 5. डाउट तो नहीं? ठीक है, सो फार सो गुड. चलो आगे देखते हैं. वापस आएंगे, चिंता मत करिए. 3 और 6, 3, 6, 9 पे भी आएंगे अभी. हाँ जी, अगर क्वेश्चन इज इफ द लास्ट 2 digit of a number is divisible by n, if the last 2 digit of a number is divisible by n, last 2 digits, then the entire number is also divisible by n. ये statement given है. ठीक है. The values of n could be what? For what all values of n is this valid? If the last 2 digits of a number are divisible by n, then the entire number is also divisible by n. What values of n could be there? क्या करें? बताइए. ऑप्शंस हैं ये. क्वेश्चन समझ में आया? लेट्स से नंबर इज ABC DE, something like that. Okay, it says when the last 2 digits are divisible by n, the entire number is also divisible by n. For what all values of n this is valid? ये बोल रहा है. 4 करके कैसे सिर्फ 4 है, और ABC 00 प्लस DE लिख सकता हूं मैं. कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, वही किया था ना अभी हमने. ABC into 100 plus DE, this is a 2-digit number. So this ABC into 100 is divisible by what? 100. ये तो पक्का पता है हमें. पता है ना कि भाई ABC into, उड़ गया सब कुछ, चेहरे पे दिख रहा है. तो भाई यार बेसिक चीजें में गड़बड़ कर देता है. चलिए, क्या इसको 12300 प्लस 45 नहीं लिख सकता हूं मैं? तो इसमें क्या नहीं चमक रहा है? अबे मेरी मर्जी. समझाने के लिए किया ना बाबू कि लॉजिक कहां से आ रहा है. 4 छोड़ दो, ये समझ में, इसमें क्या समझ में नहीं आया? मैं सिंपल बोल रहा था, क्या ये 100 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अरे वो छोड़ दे 4 की प्रॉपर्टी. अब अगले पे आ गए हम. क्वेश्चन दिया है मैंने, 4 की प्रॉपर्टी पीछे चली गई. आगे बढ़ जाओ. क्या ये नंबर 100 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पक्का है. तो वही तो बोला मैंने यहाँ पे. कौन सी मैंने यहाँ पे फारसी बोली थी? ठीक है, 1 2 3 4 5 को मैंने ABCDE लिख दिया. तो ABC दैट इज 12300 प्लस DE दैट इज 45, ये किया है. सो दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 100. गेटिंग द पॉइंट? यस. सो 100 का मतलब क्या है? सॉरी, 4 into 25. So this number is also divisible by 4. This number is also divisible by 25. Yes? Getting the point? So ये DE बचता है. If I divide this by 4, the entire number is divisible by 4. If I could divide this by 25 also, if it is let's say 50, let's say 75, let's say 25, I can divide the whole number by 25 also. Yes? And if I divide by 100 also, क्या 2-digit number 100 से divide हो सकता है? No, that means it has to be 00 in that case. 00 हो सकता है उस केस में. Last would be 00. So पूरा नंबर भी 100 से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट 2 digit को भी मान लेते हैं कि 100 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि लास्ट 2 00 है. Yes? So any number that is anyway divisible by 4 and 25 will be divided by 100. ठीक है? तो बट पॉसिबिलिटी क्या है? 4 से सेपरेटली हो सकता है, 25 से सेपरेटली हो सकता है. ओनली इन केस व्हेन 4 and 25 आर द फैक्टर्स टुगेदर ऑफ दिस नंबर, ओनली इन दैट केस 100 से डिवाइड होगा. वी कैन से दैट. यस?
है ना? सो उसकी पॉसिबिलिटी है क्या? कैसे? 100 पे ही है, बस डबल जीरो होना चाहिए. देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. फॉर एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ डीई इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा 100 से डिवाइड हो जाए. जब तक खाली 1 2 3 डबल जीरो ही तो है, जो 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 25 से भी. नाउ द मोमेंट यू पुट इट फ्रॉम 1 to 99, is there any number in between that will go with both 4 also and 25 also? It has to be 100 का मल्टीपल होनी ना. कोई और हो सकता है क्या? 100 का मल्टीपल ही तो हो सकता है. 4 और 25 से डिवाइड होगा, इसमें डाउट तो नहीं है. इट हैज टू बी ओनली 100 का मल्टीपल. आज उड़ा हुआ है मामला लग रहा है. नहीं समझ में आ रहा है? सर हाँ. सर सर डी तो 2 डिजिट नंबर है ना? यस. पूरा Sir, then नंबर why जब डिवाइड माना 100? जाएगा, अब एंड में डबल जीरो है तो हम उसको मान सकते हैं कि भाई ये 100 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि सिर्फ डबल जीरो की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको हम बोल सकते हैं कुछ भी, द मोमेंट देयर इज जीरो इन द एंड. यस. सो दैट, बट सर 4 और 25 आर द टू नंबर्स यूजिंग विच यू कैन से कि अगर ये लास्ट डिजिट 25 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा भी 25 से डिवाइड होगा. अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा भी 4 से डिवाइड होगा. कैन वी से दिस फॉर एनी अदर नंबर? एनीवन? 50? वन पॉसिबिलिटी ओनली. एंड में 5 जीरो हो जाए 120. तो ये भी 100 है ना, तो 50 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, इंटू 2 करके. कोई भी नंबर सोच सकते हो ना इस केस में. 5, व्हाट अबाउट 5? विल इट वर्क फॉर 5? If this is divisible by 5, can I say the whole number is divisible by 5? Why? क्योंकि तो 100 है ना यार. ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है. 25 हो रहा है तो 5 से तो होगा ही ना. So if the number is divisible by 5, this number, the two-digit number, can we say the entire number will be divisible by 5? Yes. उसमें कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5 से तो पता ही है हमें एंड में 0 या 5 होना चाहिए, वो वैसे भी पता है हमें. But this is the logic that goes behind this divisibility rule. कि if the last two digit is divisible by some number, right, in a way कि वो 100 का मल्टीपल हो. 6 से नहीं बोल सकते. Can we say the same for 6? That if the last two digits are divisible by 6, the whole number will be divisible by 6. The only thing that comes here is ABC into 100, na? ABC can be anything we don't know. We are only basing our assumption on this 100 that is there. So any factors of 100 will hold true for this statement, but nothing else. So factors of 100 क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है क्या? 20 भी हो सकता है. और क्या हो सकता है? 50 भी हो सकता है, 40 हो सकता है. 40 कैसे होगा? ये 100 को कैसे डिवाइड कर दोगे 40 से? This number you cannot be sure na if this number will be divisible by 40 or not. I can only be sure if the number 100 is divisible by something. So 25 can be there, 50 can be there. So understand the logic, because sometimes you may get an odd question over there. You will have to apply certain logic on your own there. So when we split the number like this, we can work on the idea that अगर मैं last two digit check कर लूं तो I know any multiple of 100, right, will divide the entire number अगर वो उस number से divide हो रहा होगा. And then I have to check only in a small pool also. I don't have to check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have the pool कि भाई इतने में ही check करना है मुझे. I don't have to check more, क्योंकि इसको पहले तो इंश्योर करना है ना. This has to be divided, तभी तो बचा हुआ देखेंगे. नहीं आ रहा है समझ में? उड़ गया है सब. कितनों को समझ में नहीं आया? हाँ जी, क्या समझ? व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? पीछे आप बताइए पहले. कुछ भी नहीं? ये रहा सर. बताओ भाई, एग्जाम्पल लेते हैं चलो. 1 2 4 2 5 सिंपल एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट. ये तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है 25 से डिवाइड हो रहा है. ये ले लेते हैं चलो. ठीक है. So I want to check if this is divisible by 4. वो तो सिंपल है ही यार. लास्ट के 4 टू डिजिट देखने हैं मुझे.
तो मैंने देखा कि बॉस ये तो 13500 है प्लस 16 है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से भी हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है और 50 से भी हो रहा है। ये तो पता है मुझे कि ये तो इन नंबर से डिवाइड हो रहा है, एंड फाइनली 100 से भी हो रहा है। नाउ आई हैव टू चेक ये किससे डिवाइड हो रहा है फॉर द होल नंबर टू बी डिविजिबल। बट क्या इसी पूल में से चेक करूंगा मैं? बिकॉज ओनली दीज नंबर्स कैन इंश्योर ये डिवाइड हो रहा है। देयर कुड बी अदर नंबर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, क्या वो छोड़ देते हैं। फाइनल तो 0 0 है, तो ओनली दिस कैन इंश्योर कि ये डिवाइड होगा। तो इसी पूल में से कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। सो वी कैन डिवाइड बाय 2, yes, we can divide by 4, so the entire number will be divisible by 4 also. Can we divide this by 5? No, the whole number will not be divisible by 5. 10, no. 25, no. 50, no. 100, no. But in this case, what do I pick? Again, same idea. 2, 4, 5, 10, 25, 50 and 100. So ये 5 से हो रहा है और 25 से हो रहा है, तो इधर देख लीजिए, तो पूरा हो जाएगा 5 और 25 से। एक और ले लो। सर यस, इतना पूरा करने की क्या जरूरत है? लास्ट के 2 डिजिट से पता तो चल रहा है। वही तो समझा रहे हैं मैडम, इतनी मेहनत के बाद आपको पेन ना उठाना पड़े, वही समझा रहे हैं। कहां से आया? फिर वही है, ठीक है। सो नाउ आई नो दिस इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज डिविजिबल बाय 4 या नहीं? 5, 10, 25 and 50. Very good. So the entire number can be divided by all these numbers without worrying about anything. हैं 50 हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ 20 और लिख लो, चलो। यस, समझ गई तू? ठीक है, ओके। सो क्लियर नाउ फाइनली? इतना बड़ा टॉपिक था नहीं। सो इसका आंसर है 1 2 3। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? चलिए वापस आते हैं। अब 3 की डिविजिबिलिटी की बात करनी है। व्हाट अबाउट 3 की डिविजिबिलिटी? इट सेज व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। कैसे आ रहा है ये? एनीवन? सोचें, बताएं, देखते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन। हाँ जी, मतलब कोई भी नंबर ले लो। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? क्या करना है हमें? वी हैव टू सिंपली डू 2 + 3 + 4 + 9 विच इज 18। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इतना सा करना है हमें, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपका होमवर्क है, आप देख के आएंगे कि ये कैसे आया। देन आई विल टेल यू इन द मॉर्निंग टुमारो। सब बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा। गूगल ना करें, स्क्रिबल समथिंग, ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द समेशन, राइट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि सम को 3 से डिवाइड कर दें तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। लेट्स फिगर इट आउट एट होम फॉर 1 डे। आई विल टेल यू टुमारो। करने की कोशिश करेंगे? यस? अभी नहीं करना है? हाँ, पूछना भी नहीं है, अभी करके आना है। यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। लेट्स सी इफ यू कैन अटेम्प्ट इट और नॉट। मैं तो बता ही दूंगा कल, बट थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं, ठीक है। सेम इज द लॉजिक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 में क्या है? 3 × 3 है। सो अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर सम 3 × 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9
that is 3 into 3, then the entire number will be divisible by 9 again, right? क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 से डिविजिबल हो तो 9 से भी डिविजिबल होगा? कैन वी से दैट? कितना हुए? 2 3 4 4. दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट? 3 से है क्या? क्यों? 2 3 4 5. चलो सॉरी, अभी नहीं हो रहा. 2 3 4 3 था. So this number is 5 plus 4 9 12. So 12 is divisible by 3. But क्या 12 9 से divisible है? No. So while this number is divisible by 3, it is not divisible by 9. So it is not necessary that all the numbers, even the bigger numbers, no matter how big the number is, if it is divisible by 3, it will be divisible by 9 also. It's a common misconception कि 12 के बाद तो सर जो भी है 15 के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से हो ही जाएगा. Doesn't work like that. It has to be divisible by 9 only. So for example, this is what? 5 plus 4 9 and 9 18. अब 18 क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है, 18 is divisible by 9 also, so this number is divisible by both. ठीक है? But had this number been then it is divisible by 3 only, not 9. Getting the point? Yes? आपको समझ में आया था सर? When I tried to explain it again, कबीर आ गया था? क्या नाम है आपका? हाँ, आकाश. समझ में आया था आकाश? Okay. Is this clear people? So 3 की divisibility और 9 की divisibility sum से कैसे आ रही है? You will have to figure out and tell me tomorrow. Yes? And then I will tell you. Let's see if you can figure it out. ठीक है? मजा आएगा तभी. चलिए, कंपोजिट नंबर की अगर बात करते हैं, now let's say coming to 6. So divisibility of 6 बचता है इसमें हमारा अभी, बाकी और भी देखेंगे. So what is the logic behind divisibility of 6? Any number 6 is what? 2 into 3. So any number that is divisible by 2 also and 3 also. That means unit digit 2 का multiple होना चाहिए, and the summation of the number digits should be divisible by 3. Then the number will be divisible by 6. Yes? ठीक है? अब ऐसे ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, let's say 12. It is 2 into 6. So any number that is divisible by 2 and 6, it will be divided by or divisible by 12. Yes? Sir, 18. What about 18? 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, but 12 से होता है क्या? नहीं. Then what is the problem? The problem is that we have to take co-primes. We have to take co-primes. उसमें already 2 इधर भी है, 2 इधर भी है. So we are missing out on one this thing test. हमने सिर्फ 2 से कर दिया जबकि करना था 4 से, because 2 was hidden over here. 9 से होने दो, हम तो 12 की बात कर रहे हैं. 12 से डिविजिबिलिटी का रूल की बात कर रहे हैं हम. 18 तो 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है. क्या होते हैं सर को-प्राइम? हाँ सर, 3 और 4 आपस में 1 के अलावा नहीं होते. को-प्राइम 2 डिजिट होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना? अकेले अकेले नहीं होते. अकेले अकेले सिर्फ प्राइम होते हैं, तभी वो प्राइम है, क्योंकि उनसा कोई नहीं. ठीक है? That is the point. Co-prime is always in pair. So you have to take the co-prime. If it is now, we will say that if a number is divisible by 3 and 4, then it is divisible by 12, not 2 and 6. Getting the point? 2 and 6 से हमने देखा गड़बड़ हो जाएगी. So remember that, जल्दीबाजी में हो जाता है.
कि अच्छा 12 है, 2 and 6 से चेक कर लो फटाफट, क्योंकि फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड इज 2 and 6. ठीक है? यस और नो? यस. चलिए देन 18 का क्या करेंगे? 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है फॉर एग्जांपल. लेट्स सी, समझ में आया क्या? व्हाट डू वी चेक इट विद? 2 and 3 9. या 2 and 9? व्हाई नॉट 2 2 and and 3? 9. 2 Sir, and 9 तो करना है तो ये कर लो और ये कर लो. बट 2 and 9 वी हैव टू सी 2 फर्स्ट. ठीक है? और फिर उसके बाद अगर नंबर इतना बड़ा है कि 2 नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा ही होंगे, देन यू हैव टू टेक लेट्स से 1001. So you check with all the 3. ठीक है? 7 into 11 into 13 is 1001. So in that case you have to check with 3. Where you can get 2 co-primes, you check with those 2 co-primes. Where 2 is not possible, you check with 3. क्योंकि वो नंबर इतना बड़ा है कि there will be 3 numbers there. ठीक है? अदरवाइज को-प्राइम नहीं बनेगा. ये तो चलो नंबर ऐसा है 7, 11, 13, बट अदरवाइज को-प्राइम नहीं बनेगा. अगर हम बात करें लेट्स से 1020 की, तो यू कैन ऑलवेज टेक इट एज व्हाट 510 into 2. वो गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज दे आर नॉट को-प्राइम. देयर इज अ 2 in here also somewhere. So you have to take the numbers accordingly, where common factors ना बचे हो कहीं. Yes? Getting the point? That's the idea. तो इसमें क्या लेंगे? टू 255 into 4 हो सकता है ये. को-प्राइम्स है. There is no common factor. Is there? 255 into 4 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कोई 2 है क्या इसमें? फिर क्यों डाउट हो रहा है? The way you have to pick up the number if you have to check for divisibility of something. ये नहीं ले सकते थे इसका क्योंकि इसमें 2 भी है. इसमें 2 ऑलरेडी अलग से भी चेक कर रहे हैं अपन. क्योंकि सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आप प्रैक्टिस करके निकालोगे. सर 255 into 4 1020 होता है. टेबल याद कर लो 255 की, या 4 की याद कर लो 255 बारी. अबे 510 into 2 लिखा था, इसका आधा करके इसमें 2 ऐड कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया. मुझे भी याद नहीं था. किसमें सर? इसमें 17 और 30 ले सकते हो सर. मैं आइडिया दे रहा हूं आपको. नंबर बहुत सारे उस तरह से आएंगे, प्राइम बनाने हैं आपको. आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है. अब ये 255 की थोड़ी निकालोगे ऑब्वियसली, यू विल गो फॉर द डाउन. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस कि ये नहीं लेना है. यू हैव टू टेक अ नंबर एटलीस्ट जिसमें कॉमन फैक्टर्स ना हो. इसमें तो ऑब्वियसली आई विल ब्रेक इट डाउन फर्दर. आई विल गो डाउन टू 3 नंबर्स. 255 की किसे पता है कि नंबर 255 से डिविजिबल है या नहीं है? आई विल कम डाउन टू एटलीस्ट नंबर जो मुझे पता है. Divisibility टेस्ट करना है ना. If I come to a point where I have to divide only in the end, what is the point? So I'll further bring it down obviously. But the idea, understand the essence. You cannot have 2 factors to check the divisibility which has common factors in themselves. Yes? Co-primes. Understand? तो 1020 510 के क्या फैक्टर हैं बताओ? 17 तिया कितना होता है? 51. तो एक 17 इंटू 3 30 है ना, इंटू 4. तो ये 30 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 है इसमें अभी. सो आई विल टेक 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8. आई विल टेक दीज नंबर्स. 8 ही होगा ना यार. थोड़ी तो गणित आती है मुझे, कम आती है बट इतनी तो आती है कि आपको पास करा दूंगा. हाँ जी पीछे बोलो, क्या कौन हाथ उठा रहा था? कैसे होगा? पीछे ही दरवाजा है. अबे 5 या 15 दूनी 30 होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी दोस्तों पेशेंस ना इतने टेस्ट कर लेते हो ना तुम लोग कभी कभी मेरी. मैंने लिखा था 255 into 4.
हाँ, या मैंने लिखा था, छोड़ो इसको, मैंने लिखा था 510 इंटू 2, इसको हमने बनाया 17 इंटू 30, फिर हमने इसको बनाया, हाँ सही कह रहे हो भाई, गलती है मेरी, बेकार में गाली दे दी मैंने, यू आर राइट। सो 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, इमोशनल हो गए सब लोग। हाँ भी अर्पित, तूने मेरा साथ दिया। वही गलती मेरी भी, दोनों ही फेल होंगे एक साथ अपन लोग, कैसे चलेगा ऐसे, 4 ही होगा। बट ऑल द को प्राइम्स इज व्हाट वी हैव टू, द बेसिक आइडिया इज whenever you have to check any number and if it is divisible by some number, find factors which does not have any commonality or come down to prime factors basically. ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। So common factor नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ ही होगा, because if let's say somewhere 2 is there, so we'll check with 2 but we'll not check with 4, and we know something that is divisible by 2 may not be divisible by 4. Or we check with 4 but not with 8, while it should have been checked with 8. So उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। So this is how you have to figure it out. ठीक है, चलिए। So divisibility सबकी बन गई हमारी, 7 11 की बची है। So 2 4 8 की हमें पता चल गई, पेयर्स में 3 और 9 की हमें पता चल गई, पेयर्स में 6 की पता चल गई, 2 इंटू 3 है, so 2 से भी और 3 से भी अलग अलग, ठीक है। 5 की और 10 की हमें पता है। अब बचता है 7 11 12 एंड इवन 13। 12 की भी पता चल गई वैसे तो हमें, 12 is 3 into 4, तो सब 7 11 13 बचता है, ठीक है। विल कम टू दैट नाउ। चलिए लेट्स सी दिस, पहले सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ 9 डिजिट नंबर 4253645 leaves a remainder 0 when divided by 3. How many possible values of n are there? A 9 digit number 4253645 leaves a remainder 0 when divided by 3. That means number is divisible by 3. दिख रहा है पीछे नंबर? हाँ भाई, how many values of n are possible? क्या करेंगे इसमें? What is the idea? 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज, एक आंसर मेरे पास 3 आया, एक 4 आया, 5 6 वाले भी बता दो। 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज कैसे किया? लेट्स सी, कौन बताएगा? ऑनलाइन कोई बताए, लेट्स सी कैसे किया। 30 प्लस n, क्या किया ये? 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 So प्लस 6। 3 डिविजिबिलिटी मुझे रूल लगाना है। What is that rule? Summation of all the digits. Prabhudeva, tell me what is the idea? How will you do it? Come on, boy. SDM आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, SDM आंध्र प्रदेश, बताओ। बनना है ना सबको IAS, so you have to be forthcoming. Tell me what is the basic idea that you will apply quickly, more than quickly. ये नियो की तरह आंखें मचकाने से नहीं होगा कुछ की, कुछ तो चमक में आ रहा है मुझे। What is the basic idea? Divisibility of 3. What do I apply? Yes, what is the divisibility of 3 principle? Answer my question. What is the rule of divisibility by 3? अबे अभी तब से क्या कर रहे हैं? Are you sleeping? How will you pass CSAT? Just by sitting in the class, how will you pass CSAT? Kabir. Sum of digits should be divisible by 3. Why don't you know this? Be in the class. I am looking at you सबसे. 6 plus 5, 11, 3, 14, 6, 20, 29, 30. So this number is 30 plus n. तो ये for what all values of n will it be divisible by 3? 3 0 भी हो सकता है, 4 2 5 3 6 4 5 0, sorry 1 0. This can be a number which will be divisible by 3 because the sum is 30. Sum could be 33 also. N value can be 3 as well. So this would be
4 2 5 3 6 4 5 1 3. Sum could be 36 also, so this could be 6 as well. Sum could be 9 also. So there are 4 values. How many of you could do it? Simple question. Yes. Now had the number been, let's say, अब क्या होता? How many values? What did I do? I made the sum 31. So how many values are possible now? 2 is possible. Then 5 is possible. 8 is possible. 11. Single digit तो होगा. So 3 values are possible. Because now the sum is 31. तो 31 divide नहीं होता है. तो n की value, first least value could be something which will make this summation divisible by 3. So 33. Then 36. Then 39. So there are only 3 values. Only if there is a 0, then we'll have 4 values because 30 already is divisible by 3. Getting the point? Yes? अगर ये sum बढ़ के 35 हो जाता, let's say ये भी 5 होता और ये भी 5 होता, so फिर 36 and 39, there is no other value, so 2 values. Getting the idea? It depends on the सर sum नहीं सर and how it moves to the next value, minimum possible value which is divisible by 3. ठीक है? सर नहीं सर यहाँ से समझ में नहीं आया 30 प्लस एंड 1 भी होगा, 36, फिर 4 होगा, 39, और भी होगा कुछ? क्यों नहीं होगा? 7 भी तो होगा ना दोस्तों, 42 भी तो हो जाएगा. सर ऐसे तो इसके तो क्यों जीवन चलता के ही सारे रहेगा। सत्य ही यही मिल रहे हैं. हाँ जी मैडम. The sum has to be Sir, ऐसे- multiple of 3 ना? As long as there is single digit, what is the problem? हम 39 पे छोड़ देते. वहां पे आगे क्यों नहीं बढ़े थे? क्योंकि ऑलरेडी हम डबल डिजिट पे आ गए थे. एवरीवन क्लियर? सर नहीं Basic समझ में things. आ रहा है यहाँ से. क्या नहीं समझ में आया इसमें? तो 30 प्लस 30 आया फिर 30 4 प्लस 5 से हमने कैसे किया? 3 5 7 4 5 1 n है. कितना समय ये? 9 3 12 12 17 24 28 और 33 और 34, 34 हो गया ये. नाउ दिस समेशन हैज टू बी डिविजिबल बाय 3. तो व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस समेशन इज? n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 34 नहीं वर्क करता है. 1 रखते हैं तो नहीं वर्क करता है. 2 रखते हैं सबसे पहले, सो 34 प्लस 2 हो सकता है. और फिर उसके बाद तो पता ही है. एट भी तो कर सकता हूं ना मैं. यस अगला तो ये बनेगा ना, बट 11 तो नहीं ले सकते. इट हैज टू बी सिंगल डिजिट नंबर लेस देन 10 अप टू 9. यस सर, सम प्रॉब्लम. 34 plus 8 is 42. It is divisible by 3, isn't it? The summation has to be divisible by 3. This is 9. Sorry, 12. This is 13. This is 14. The moment the sum is divisible by 3, the sum of the entire thing, 36 is divisible by 3, 34 plus 2, n value can be anything, right? I have to make the sum as divisible by 3. So 34 plus 2, 36. 34 plus 5, 39. This is also divisible by 3. 34 plus 8, 42. 42 is also divisible by 3. So the sum has to be divisible by 3. Getting it? अगर सेम क्वेश्चन 9 की कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, है ना? तो सेम क्वेश्चन को अगर मैं 9 के कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं, सो 34 प्लस n शुड बी डिविजिबल बाय 9. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 2. 34 प्लस 2, 36 9 से डिवाइड होता है, 9 चौक 36. देन एनी अदर नंबर? नो अदर नंबर, क्योंकि जब भी आप 9 ऐड करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली गो टू द 2 डिजिट अरीना. सो देयर कैन बी ओनली वन नंबर.
when it comes to checking divisibility of 9. और या वो 0 आ जाए कुछ ऐसा, that already sum is 36 plus n. So n 0 भी हो सकता है, and then n can be 9 also. It will become 45. अगर already this is divisible by 9, then my n can be 0, my n can be 9 also. So only in that case, when divisibility of 9 check is there, you will have two values. Otherwise you will always have one value. समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं. You have to get the idea. वहां solve करना पड़ सकता है. There will be a different iteration of a question. So focus more on understanding the concept. कि क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं. घड़ी कहाँ है? टाइम कितना हो गया है? आधा घंटा. 11:30 से 1. अच्छा 1:30 बजे तो होनी थी ना क्लास. ठीक है, करते जरा सा ये खत्म कर लेते हैं. Getting the point, people? Yes. सिर्फ लॉजिक है. चलिए ये देखें. Let's try to do this. ये तो आसान है बहुत. पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है. Total sum has to be divisible by 9. So first is already 9. 4 and 5 is also 9. So 18 हो गया. 2 and 4 is 6. 3 बचता है. 3 is the answer. As simple as that. The total sum has to be divisible by 9. Yes. So 3 is the value. 9, 4, 5, 2, 3, 4. You add it up. It will become 27. अभी क्या है? 24 plus star है. Star की वैल्यू निकालनी है. So 24 plus 3, 7. 27. 27 is divisible by 9. 3. Simple question again. ये तो बहुत सिंपल है. अब आते हैं 11 की बात करने. चलिए एक बार. 13 की कल करेंगे, ओवर हैवी लोड हो जाएगा बहुत ज्यादा. 11 की बात करते हैं. 11 का आइडिया समझिए. When you multiply, let's say anything by 11, what happens? Let's try to understand. Yes? Let's take one more number. What do we see here? The middle digit is the summation of these two numbers. Yes? Here also, the middle digit is the summation of these two numbers. That means if I say कि भाई अगर ये number है A, B, C, if I take alternate values, तो दोनों को अगर मैं add कर दूं, जैसे ये 0 आ जाता है, तो can I say that number is a multiple of 11? Yes or no? क्योंकि यहीं से तो निकाला है. नंबर को मल्टीप्लाई किया 11 से. 11 is multiplied 25 times, I got 275. And if I subtract alternate values कि A plus C minus B कर दिया, तो obviously 0 आएगा क्योंकि बीच का समेशन है. इधर भी ऐसा ही है. 3 plus 6 minus 9 will be 0 again. Take any other number. Four plus 5 minus 9. Take any number. If this subtraction of alternate values becomes 0, can I safely say कि number 11 है कि number 11 का multiple होगा? वहीं से निकल के आया है. That means it will be divisible by 11 or not? Yes. So that is the same logic that applies to any large number also. क्योंकि आप और डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, निकल के वो ही आएगा. 3 digit ले लो, 4 digit ले लो, it will keep getting bigger if you take a 3 digit number. है ना? क्या 65 into 11 करना है? कर लो. मुझे क्यों कह रहे हो? अरे हद हो गई. बैठेगा मैडम? कैसे नहीं बैठेगा? बैठेगा तो गणित खत्म हो जाएगी.
3773। अब ऑल्टरनेट लेने है सर। बैठेगा ही मैडम, ये लॉजिक है। यस, सो इफ आई टेक एन इवन लार्जर नंबर, एक और लेके देख लेते हैं। डिविजिबल है। 10 and 10. So this works every single time. The moment you are multiplying the number by 11, it becomes something like this, in a manner that if you take alternate numbers and subtract the other alternate set, odd even कैसे कर लो, it should come 0 or a multiple of 11. वो एक ही बात है क्योंकि invariably वो 0 हो जाता है. Then the number becomes divisible by 11. समझ के कितनी आसानी से दिमाग खुल जाता है। लोग रटवा देते हैं कि ऑल्टरनेट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो 11 से डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है भाई, कहां से आया लॉजिक? बट नाउ दैट यू अंडरस्टैंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। यस, क्लियर गाइज ऑनलाइन? Yeah, sir. Yes? Yes. So you have to take alternate numbers. That means if the number is in the form of A, B, C, D, E, F, G, H also, so you take alternate numbers. A plus C plus E plus G minus B plus D plus F plus H. कितने भी हो जाएं, doesn't matter. There is no limit to it. This has to be 0 or multiple of 11. Then the number is divisible by 11. Clear? Any doubt? ट्राई करिए, एक नंबर लिखिए, देखिए हो रहा है क्या। वैसे मल्टीप्लाई करके निकाल के दिखाना है, ठीक है? लेट्स टेक ए नंबर। सेवन सिक्स टू वन फाइव टू इंटू 11 करिए और फिर जो फाइनल नंबर आए देखिए क्या इट इज वैलिड। ऑल्टरनेट्स सब्ट्रैक्ट होके 0 आ रहा है क्या? मल्टीप्लाइड बाय 11 जल्दी जल्दी, इतना सोचना क्या पड़ रहा है? कैसे लिख रहा है? 11 का सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिख। कैसे लिखते हैं? अबे वेरीफाई कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नहीं पूछा है कि ये डिवाइड हो रहा है क्या नहीं। नहीं आ रहा। नो कैसे नहीं सर। आएगा? Yes, sir. आ अबे रहा यार है, इतनी गणित दोबारा चेक करो। आ रहा है सर, आ रहा है। ये आना चाहिए मैडम, जिसका नहीं आया नीचे। 8383672. डिविजिबिलिटी तो आएगी। वी आर ओनली चेकिंग इज इट वैलिड फॉर एनी नंबर दैट ऑल्टरनेट्स सब्ट्रैक्टेड कम्स आउट टू बी 0. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक। आई एम मेकिंग यू डू दैट। It's coming 11, sir. इट विल आइदर बी Yes, sir, 11, 11 जितना बड़ा नंबर होगा समेशन बढ़ जाएगा। दैट इज वाई 11, ठीक है? जितने नंबर बड़ा होता चला जाएगा ऑल्टरनेट का सम बड़ा हो जाएगा। लेट्स से 211 माइनस 200 और 222 माइनस 200, बिकॉज समेशन बड़ा होता जाएगा ना। छोटे नंबर्स में 0 हो जाता है, बड़े नंबर्स में वो मल्टीपल ऑफ 11 निकल के आएगा, आप देखेंगे। सो व्हाट इज दिस? 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24, माइनस 13. 3 प्लस 3 6 13. and 7 13. So either 0 or multiple of 11. 11 के मल्टीपल में ही आएगा। It could be 22, it could be 33, 44, 55, 66, whatever. But till the time it is coming like that, 0 or multiple of 11, the number will be divisible by 11. ये इसीलिए दिया था क्योंकि 11 निकल के आए ताकि आपको पता चले कि 11 कैसे आता है। Getting it? ये और बड़ा नंबर हो जाएगा तो it could be 22 also. ये और बड़ा नंबर हो जाएगा, it could be 66 also. Depends on the numbers, how many numbers you are adding up and then subtracting. But ये multiple of 11 ही रहेगा. You can try for any number at home. ठीक है? Write a number जो पूरे रजिस्टर में आ जाए, फिर करके देखना। एक छोड़ देना बस क्योंकि नीचे लाना है। क्वेश्चन दे दूंगा सर होम प्रैक्टिस शीट में, इतने सारे दूंगा
4 पेज में आ जाएगा एक क्वेश्चन, लिखते रहोगे। वो नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है, बहुत टाइम है। इज दिस क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 to a 4 5 6 6 sir. if a is divisible by 11 find the value of a। सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो क्या किया मैंने? 1 to a 4 5 6 ये ले लेते हैं ऑल्टरनेट। सो 2 and 6 and 6 12 माइनस a plus 6, ठीक है, और 6 minus a। अब इक्वल टू मैं इसको 0 रखूं या 11 रखूं? एक ही नंबर क्यों लिया? अभी तो a की वैल्यू 6 आ गई बिकॉज आई केप्ट इट एट 0। वाई डिड आई नॉट कीप इट एज 11? वाई 0 ओनली? 0 भी तो होता है ना 11 से डिविजिबल। भाई a की वैल्यू अगर इसको 11 अगर लोगे तो क्या a -5 आएगा? विल a भी -5? यस ना? वाई नो? 6 - 11 हो जाएगा ना भाई। इसमें सोचो a की वैल्यू -5 आएगी, बट कैन a भी -5? यू कैन नॉट पुट -5 इन बिटवीन, राइट? और वैसे भी 11 के मल्टीपल की बात करते हैं हम व्हेनेवर द आउटकम इज नेगेटिव। The answer will not be that. We'll add 11 into that. And what remains becomes the remainder. So answer becomes 6 again. So हमेशा 0 ही लेना है हमें, confusion नहीं create करना है। When it does not come 0 then we'll see. Next question में देखते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, ये आएगा, चिंता मत करो। सर Yes madam. आपने जो पहले नंबर दिया था 762152 वाला, हाँ, वो ऑल्टरनेट वाले मेथड से नहीं हो रहा है डिवीजन। 11 आ रहा होगा ना मैडम? फिर ऑल्टरनेट वाले से नहीं हो रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो होगा ही ना सर। जब हाँ, मैंने नहीं कहा था कि हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मैंने कहा था लेट्स अप्लाई द सेम लॉजिक इफ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 11, क्या समेशन का सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना था। ओके, मैं डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी थी उस नंबर की। मैंने यही बोला था कि उस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो, जो आउटकम आ रहा है उसमें ऑड इवन का सम करके सब्ट्रैक्ट करके देखो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है। दैट इज व्हाट आई सेड। आई वांटेड यू टू सी कि मल्टीपल ऑफ 11 कैसे आता है। दैट वाज द पॉइंट। ओके सर, ठीक है, हाँ जी। नाउ दिस इज द नंबर 1 to a 4 5 6। ये तो वही क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। नाउ दिस इज द नंबर 372B92। देखिए, बताइए वैल्यू 372B92। इतने सारे ऐड कर देगी तो कैसे चलेगा? इतने तो नंबर नहीं, इतने तो ऐड कर रही है। 4 क्यों लगा दी, 3 लगाना। हाँ जी, क्या आ रहा है? What is the number? What is the answer, people? 372B92। ऐसे के लिए पेन चला लो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। क्या ऐड किया, क्या मिस किया। कैलकुलेशन के लिए ऐसी बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है। बताइए मैडम, आप बताइए, क्या नाम है आपका? हर्षिता। बताइए हर्षिता, आप बताएंगी और अगला ये बताएगा। फाइव तो है ही नहीं ऑप्शन में मैडम, देखते हैं। पीपल से 6 चेक करो, 5 है कि -5 है। आरुषि पीछे, दर्पी नहीं आया, करिए करिए। 5 नहीं आएगा, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अपना ई नई OMR थोड़ी आ गई है कि ई भी आता है, ये मेरा वाला है। प्रतीक्षा 6 आया, 5 कैसे आ रहा है? -5 आ रहा होगा। 0 से ही करो, -5 आएगा। सर आ तो 5 ही रहा है। 3 और 2 5, 5 और 2 7 हाँ सॉरी 14।
14 चलिए 9 9 आएगा उससे। 9 भी सर। b इक्वल टू 5 आ रहा है, ओके। 14 माइनस b माइनस 9, b इक्वल टू 5, चलो ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है, देन नेगेटिव आना चाहिए आइडियली। हमने क्या किया था? हाँ, 3 + 2 + 9, ठीक तो किया था हमने। 5 आ रहा सर। 14 माइनस b प्लस 9, सर -5 आएगा ना? नहीं सर, b इक्वल टू 5 ही आ रहा है, 5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन गलत बन गया ये, हाँ क्वेश्चन गलत बन गया ये। आइडियली इट शुड हैव बीन कि ये -5 आए, ठीक है। 11 से करेंगे तो 6 आएगा, वो बात नहीं है। ऐसे नहीं होता है कि किससे करें, यू हैव टू डू इट बाय 0 ओनली, ठीक है। आई मेड द क्वेश्चन रॉन्ग, जल्दीबाजी में बनाया मैंने सुबह सुबह, तो वो एडिशन वैसे हो गया है। सो द आउटकम शुड हैव बीन कि ये -5 आता, दिस शुड हैव बीन 9 माइनस b प्लस 14, बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा 29 हो गया, ये 92 ना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। सो नंबर वाज सपोज्ड टू बी 372 b29 instead of b92. This would have been the question which we wanted to address, ठीक है। उस केस में तो 5 ही आंसर, दैट इज ओके, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इस केस में क्वेश्चन ये बनाना था, सो दिस वुड हैव बीन 7 माइनस b प्लस कितना हुआ, 16 हुआ ना, तो b की वैल्यू आती -9, कितनी, 16, हाँ ठीक है ना। b की वैल्यू आती है -9, और फिर b की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो यू वुड ऐड 11 2, देन 2 वुड हैव बीन द आंसर। क्वेश्चन गड़बड़ बन गया, बेसिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी 29। सो द आइडिया टू डेमोन्स्ट्रेट वाज दैट व्हेन द आउटकम बिकम्स नेगेटिव यू ऑलवेज ट्राई विद 0 ओनली। ऐसे कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करके 11 से करें, 22 से करें, किससे करें? So you have to always try with 0. नंबर इस तरह, क्वेश्चन इस तरह बनते हैं wherein you get that outcome, right? So you always try with 0 and then either you get negative or you get positive. Okay? अगर negative आ रहा है you add 11 and then what remains सर is आपने the answer. 11 हाँ जी, 11 क्यों ऐड करा? 11 इसलिए ऐड किया क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, पहली बात। बीच में यहाँ पे हम -2 कैसे लिख देते, या -9 कैसे लिख देते, 372 -9 कैसे लिखोगे बीच में, नंबर है ना ये तो। और क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, रिमाइंडर थ्योरम की बात है, रिमाइंडर्स की बात है। इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 11 और उसमें रिमाइंडर -9 आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 121 है, ठीक है, 121 ना होके ये तो 11 से डिवाइड होता है, यस। तो अगर ये 113 होता, लेट्स से, अगर ये 113 होता, सो दैट मीन्स दिस इज 113 प्लस 9 विच इज 121 विच इज डिविजिबल बाय 11। 112 होता, चल ठीक है मेरी मैथ उड़ गई है, तुम लोगों को समझाते 121 होता। सो व्हेन आई से यार 112 एक नंबर ऐसा है जिसका रिमाइंडर -9 है, अगर 11 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मतलब होगा इसका कि 121 से 9 नंबर कम जो 112 है, आई वॉन्ट 121, ठीक है, एंड आई हैव 112। 11 से आप कुछ भी डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 to 10 हो सकता है, 11 रिमाइंडर थोड़ी होगा। और 0 to 10 कब होगा? जब 11 से आगे जाएंगे। 12 पे रिमाइंडर 1 है, इस पे 0 है, 13 पे रिमाइंडर 2 है, 14 पे रिमाइंडर 3 एंड सो ऑन। बट इफ आई गो बैकवर्ड, 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूं,
11 से पॉसिबल नहीं है. बट व्हाट इज द गैप बिटवीन द डिविजिबिलिटी? -1 का. दैट इफ देयर वाज वन मोर थिंग it would have been divisible by 11. Similarly, 9 is 2 less. So if I add 2 more, it becomes 11. 8 is 3 less than 11. Multiplication one के point of minute. view से. Yes. So if I add 8 more, then I get, sorry, 3 more, then I get 11. तो इसीलिए जो negative remainders होते हैं, that means we are short of that amount to come to the next number which is divisible by 11, that number. Getting the point? तो इसलिए हम 11 को या किसी भी नंबर को उसमें ऐड कर देते हैं to come to that next number जिसमें हम वो डिविजिबिलिटी देख पाए. That is the idea here. ठीक है? सो जब भी नेगेटिव आउटकम आएगा, यू ऑलवेज, चाहे a माइनस कुछ भी है या a प्लस कुछ भी है, यू ऑलवेज इक्वेट इट बाय 0 ओनली. डोंट ट्राई कि पहले 11 से इक्वेट करते हैं या 10 से 22 से इक्वेट करते हैं या 33 से इक्वेट करते हैं. नो सच कंफ्यूजन इज रिक्वायर्ड. 0 से ही इक्वेट करना है. राइट? एज वी डिस्कस दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेट नंबर्स हैज टू बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11. सो वी हैव टू डू इट बाय 0 ओनली. सो आइदर इट विल कम टू बी पॉजिटिव, तब तो वही आंसर है, और इट विल कम टू बी नेगेटिव. इन दैट केस +11 करिए, जो बैलेंस बचेगा वो आंसर आएगा. That is how divisibility work. ठीक है? Clear? चलिए let's see. Next वाला, ये देखें क्या है. 652 B38. और ये है क्वेश्चन. वो पहला वाला पॉजिटिव ही था, कंफ्यूज हो गया मैं, मुझे लगा वही क्वेश्चन मैं नेगेटिव बना के लाया हूँ. दिस इज द नेगेटिव वाला क्वेश्चन. वो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन था, दैट वाज फाइन. दिस इज द क्वेश्चन. डू दिस, लेट्स सी. So What is coming out over here? 6 plus 2 plus 3 is 11 minus b plus 13. हमें इक्वेट 0 पे ही करना है. So I get minus b minus 2 is equal to 0 और b is equal to -2. But -2 cannot be the number. So plus 11 करेंगे आप तो 9 आएगा. This is that question. वो पहला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी. I thought कि एक क्वेश्चन दिया है मैंने. Getting the point? So जब भी आउटकम नेगेटिव है, you add 11 in any numbers basically. If the outcome is negative, you add that number जिसकी divisibility चेक हो रही है. If we were checking the divisibility of 7 for example, and the number was -2, I would have added 7 in that and my answer would have been 5. If I was checking for the divisibility of 9 and the number was -5, ABC करके जो हम देख रहे हैं, summation करके देखना होता है ना उसमें भी. If the number was -5 for example, then I would have added 9 in that and my answer would have been 4. So every time it works. It has to be like that, क्योंकि आप वो number line वाली बात है. You are short those many numbers, so you add that amount when we talk about negative numbers. ठीक है? पीछे की तरफ जा रहे हैं. Getting the point? For any divisibility, not just for 11. किसी में भी आउटकम अगर नेगेटिव है, you have to add the number from which you are dividing or trying to divide, and then the outcome becomes your answer. ठीक है? 5 का चेक कर रहे हैं, -4 आया, -4 plus 5 1. आंसर वुड बी 1. 3 का चेक कर रहे हैं, -4 आ सकता है क्या 3 में? It will still be -1. 3 में -1 या -2 ही आएगा. The negative number will be less than the number only. So it will be 3 में अगर -2 आ रहा है 3 की divisibility चेक में, प्लस 3 ऐड करिए, आंसर वुड बी 1. वर्क्स लाइक दैट. ओके, बस हो गया आई थिंक, खत्म. क्या प्रॉब्लम है? ये और करके देखो, लेट्स सी क्या आ रहा है. 372 B42. हो सकता है गड़बड़ कर दी हो मैंने फिर से. 3 और 2 5 9. सर 0 आ रहा है. इसकी वैल्यू तो 0 आई है. 0 आ रही है सर. हाँ, क्या आ रही है? 0. 3 + 2 + 4 - 9 is equal to
b प्लस 7 प्लस 2 है ना? सॉरी क्या किया मैंने? नहीं, ये और ये है ना? ठीक है, तो क्या हुआ ये? 9 9 equals to 9 plus 3. b की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती जहां पे b माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाता, तब क्या होता? लेट्स से अगर नंबर होता 3 7, b प्लस 10 बोला ना मैंने, अभी तो 0 आया। हाँ, अगर b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या b माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये नहीं, अगर b माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या करेंगे? b की वैल्यू 1 हो जाएगी। 11 minus 10. There can be a possibility where the outcome is something like this. ठीक है? अरे यार कोई क्वेश्चन बनाओ ना, चलो बनाते हैं। क्या बनाए? 1 क्या क्या ऐड करना है हमें? ये 3 ऐड करने हैं। तो इसमें कितने हो गए? 9 है ना ये, और इधर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 3 9 1 b 4 9 कितना हो रहा है ये? 8 18। हाँ चलिए, नंबर आ गया 391 b49। लेट्स से द नंबर इज 391 b49। अब चेक करना है दैट दिस इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? करिए जरा, क्या आ रहा है? क्या किया मैंने? हाँ ठीक है ना, ये 8 है। B minus -10 सर। minus 10. हाँ. b इक्वल टू -10 आएगा, Yes sir. या b इक्वल टू b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा? b minus 10 -10 आ रहा है इसमें, तो b की वैल्यू -10 आ रही है, तो 1 हो जाएगा। नहीं, हमें एक पॉसिबिलिटी चाहिए जहां पे b की वैल्यू b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आए। वी वांट दैट पॉसिबिलिटी। एक मिनट रुकिए, देखते हैं। 9 क्या नंबर बनाया था मैंने अभी? बताना, नंबर क्या बनाया था मैंने? 391 b49। अगर पॉसिबिलिटी हो, नंबर बनेगा नहीं ना, ऐसा कोई बन जाएगा वैसे तो। मुझे चाहिए इधर 18। 939 कर लेते हैं। स्विच कर दो ना डिजिट्स। यस सर, b41 कर लेते हैं। 939 b41 अभी भी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? अरे इसको रिवर्स करके लिख दो ना। सर बी को आगे ला दो एक डिजिट। b को आगे ला दो 8, दैट आल्सो वर्क्स। नहीं, b को आगे लाके कैसे चलेगा? ओ रुक यार, बी पॉजिटिव हो जाएगा ना। हमें b प्लस 10 चाहिए, मतलब यहाँ बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए 9, माय गॉड, 18 माइनस b। हाँ सर, हो आपने गया b हो गया minus हो 10 गया नहीं हो गया बोला? हो गया हो गया। वेट 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 वेट, कितना ऐड कर दिया मैंने? हाँ ये फाइनली 948 b14। चलो 948 b14 इफ दिस इज अ नंबर। इसमें क्या आ रहा है फाइनली जो हम चाहते थे? 18 8। अभी b की वैल्यू 10 आ रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बेसिकली सारी बना के देख ली हमने। सो देयर वोंट बी एनी सच वैल्यू। बेसिकली वही बात है, बताना वही चाह रहा हूं मैं। अगर किसी सिचुएशन में गलती से ऐसे आ जाए जो हम देख रहे हैं कि आ ही नहीं पा रहे हैं, सर हो जाएगा। तो वो गलत ही है। वाई? सॉरी, b माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए, बट क्योंकि क्या b की वैल्यू 10 हो सकती है? हाँ उसमें आ गया था, b इक्वल टू 10 करना है,
राइट? तो b इक्वल टू 10, क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? b इज अ यूनिट डिजिट नंबर, अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में जहां इक्वेशन ऐसी बन जाए, द आंसर इज इट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन डिटर्मिनेबल। घूम फिर के ये बताना था, b की वैल्यू उसमें फिट होने के लिए नहीं है ना। क्या वैल्यू, क्या नंबर लिखा था मैंने? वो बन गया था, लिखा किसी ने वो नंबर 948, बिना सॉल्व करे कैसे पता लग गया? सही तो था यार, ये खाम खा टेंशन दे देते तुम लोग। अब मुझे इसमें 10 रख सकता हूं क्या मैं? इट हैज टू बी 1 to 0 to 9 ओनली। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन जहां पे ऐसे आ जाए, आई कैन नॉट पुट 10 ओवर देयर, दैट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ b दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आप कुछ भी डाल लो इसमें, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11, सो द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें फंसना नहीं है कि 10 आ गया तो 11 माइनस कर देते हैं, 1 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू के केस में ही हमें 11 ऐड करना है, वी आर नॉट सबट्रैक्टिंग एनीथिंग। हैड इट बीन -10 तब तो आंसर 1 था विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट इट इज +10, सो इन दिस केस इट बिकम्स इनडिटर्मिनेट। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सच वैल्यू दैट यू पुट ओवर हियर and that the number will become divisible by 11. So only in the case of 10, right? Yes, only in the case of 10 obviously. सिर्फ इसी केस में ऐसा बनेगा, बाकी किसी केस में नहीं। ठीक है, b की वैल्यू अगर 11 आ जाए फिर नंबर इज 0, नंबर बिकम 0 इन दैट केस, क्योंकि फिर तो डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, एक 11 एडिशनल है, सो यू सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम एनी नंबर। 121 है मान लेते हैं, तो अगर इसमें से 11 माइनस कर दोगे तो भी तो ये डिविजिबल रहेगा ही। सो अगर b की वैल्यू 11 आ जाती है, सो यू पुट 0 देयर, दैट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 11 ओनली। 12 आ गई तो आप करके आना। हाँ, तो हम उस केस में b को 0 रख सकते हैं, 11 नहीं रख सकते क्योंकि वो मल्टीपल में है। उस केस में हम b को 0 रख लेंगे तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल डेट चाहिए, बट 10 को रिप्लेस नहीं कर सकते कि 1 रख देते हैं तो हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट देंगे नहीं, क्लैरिटी के लिए, जो क्लैरिटी मैं ही कंफ्यूज हो गया, बट क्लैरिटी के लिए वो नंबर गलत हो गए वहां पे। एक्चुअली द आइडिया वाज सपोज्ड टू बी दिस, दैट b + 10 हैज टू बी, और b इज इक्वल टू 10 शुड बी द नंबर। सो व्हेनेवर सच थिंग कम, डोंट पैनिक कि यार ये क्या हुआ, कुछ गलती कर दी शायद मैंने। क्विकली वेरीफाई वन मोर टाइम एंड विल स्टिल द सेम नंबर। यू कैन सिंपली पुट द आंसर एज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। So don't panic is what I am trying to tell you over here. ठीक है, हाँ हो गया बस, अब नहीं है कुछ। हाँ ये भी है वैसे, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस शीट लेके जाइए। 3 और 9 का वो समेशन से कैसे फंडा है वो कोशिश करनी है। प्रैक्टिस शीट ले लिया आप लोगों ने इधर, वो कोशिश करके आएंगे कल। टुमारो वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। We'll do some interesting things. Any 6-digit number in the form of ABC is divisible by what? So we'll do such things. And this kind of question. We are going to cover these questions tomorrow. ठीक है? And time will permit, so we'll get into remainder theorem also. ठीक है? Tomorrow we are going to address these questions. ये question UPSC पूछता है. There can be single number also. There can be two numbers also. There can be subtraction of two numbers also, so on and so forth. How to address these questions using divisibility idea. So tomorrow we are going to cover this. Tomorrow we are going to cover different interesting questions like this. Any 6-digit number, any 9-digit number, any 3-digit number, 4-digit number, ABC के फॉर्म में किससे डिवाइड होगा, how to address these things. ठीक है, I'll tell you a simple method, right? तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा, and then we'll get into remainder theorem. उसके बाद बस LCM HCF बचता है और थोड़ा बहुत वो order of magnitude, which number is bigger, which number is smaller जो आ जाता है. There are multiple
वो एक्सपोनेंट्स के बाद करेंगे या तो हम, या अभी करेंगे, एंड देन नंबर सिस्टम इज ओवर। ठीक है, द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, होम शीट, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे इकट्ठे डिस्कस करेंगे, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए आप लोगों का, क्योंकि इफ यू डू एवरीथिंग टुगेदर देन एवरीथिंग इज डन इन वन चंक एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवीजन। सो इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर कि एक बार आप लोग करिए एंड देन प्रिंट मिल जाएगा सर, जाके ले लीजिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी रिविजिट द होम शीट्स इट्स एन इम्प्लिसिट रिवीजन आल्सो, क्विकली एक। सो आवर नंबर सिस्टम विल बी डन इन दैट मैनर। सो कोशिश करेंगे कल परसों में हम एलसीएम एचसीएफ वगैरह खत्म कर दें, एंड इफ देयर समथिंग रिमेन्स आई विल सी इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लास ऑन थर्सडे एंड वील फिनिश इट इन दिस वीक इटसेल्फ, अदरवाइज वो मंडे तक ड्रैग होगा फॉर नो रीजन। ठीक है, एंड विल रैप अप नंबर सिस्टम। इसके बाद बीच में थोड़े से लाइट टॉपिक्स लेंगे, बोरियत ना हो जिससे, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सम टॉपिक्स देयर, देन विल कम टू परम्यूटेशन। वो तो आपको दे ही रखा है, शेड्यूल तो दे ही रखा है, तो उस हिसाब से ही चलेगा। द शेड्यूल इज डिजाइन इन सच अ मैनर कि लगातार मैथ से बोर ना हो जाए। सो विल डू समथिंग सम रीजनिंग पार्ट एज वेल इन बिटवीन, थोड़ा सा बोरियत कम करने के लिए। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम एट होम, एंड yeah, that's about it. Home practice sheet, please keep doing the home practice sheet. You will get the home practice sheet for these 3 days on Wednesday, right? Another 50, 60, 80 questions, whatever number, and then we'll discuss all of them together. 2-3 sessions में कुछ selected question ही discuss करेंगे. You will get a detailed solution also for that. अभी जानबूझ के नहीं दिया है कि थोड़ा सा अपना brainstorm करने की कोशिश करें. आंसर की आ गई होगी, है ना? डिटेल्ड सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए, अदरवाइज अपनी आदत बन जाती है कि इमीडिएटली आंसर सॉल्यूशन देख लो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। सो आई एम होल्डिंग इट डिलिबरेटली कि कुछ के बाद देंगे, कुछ के आंसर गलत है अभी नहीं पूछिए मैडम, डिस्कस करेंगे डाउट सेशन में। थोड़ा सा अपने आप कोशिश करिए, होम इसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीक क्लास आई विल सेंड इट एनीवे, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, थोड़ा सा अप्लाई योर ब्रेन्स, थोड़ा सा 1-2 बार गलती करिए, try to do it in a different manner, only then you will get that clarity. If you have the detailed solution in your hand, the moment you are stuck somewhere, you simply rush to the detailed solution कि यार क्यों नहीं हो रहा है, and then you don't get that clarity in your head. That is the reason. अब मैं तो ना दूं वैसे, but दे देंगे, ठीक है? And then selectively the difficult ones we'll discuss in the class. Obviously you also understand 80 question discuss नहीं हो सकते हैं क्लास में, ठीक है? So we'll do selectively. और आपस में सॉल्व कर लीजिए और बाकी डिटेल सॉल्यूशन में हो गए। इजी क्वेश्चंस आई विल लीव, डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है? बट प्लीज ट्राई टू फिनिश इट बिफोर यू गेट द सॉल्यूशन। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अपना ही पेपर क्लियर करना है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं ये। सो प्लीज ट्राई टू फिनिश इट बिफोर द सॉल्यूशन कम्स टू यू, एंड प्लीज डेफिनेटली ट्राई टू फिनिश बोथ द प्रैक्टिस शीट बिफोर द डाउट सेशन दैट हैपेंस। नहीं तो पॉइंट नहीं है ये सब एक्सरसाइज करने का, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, because at the end of the class also will remain the same, wherein CSAT पे भरोसा नहीं होगा, ठीक है? If you are finding कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, feel free to go to the market, pick up any book, feel free to go to the market, pick up any test paper and try to solve number system के question additionally, although हम लोग इतने दे देंगे जिसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मार्केट में भी, क्योंकि वो गिनी चुनी 2-4 किताबें, ठीक है? तो उसी में से 2-10 से क्वेश्चन छाट के, जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन से थोड़े से वो छाट के डालने की कोशिश करें। बेसिक भी है उसमें ऑब्वियसली कुछ, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक रिवीजन भी हो रहा है आपका व्हेन यू डू दैट, एंड देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। ऑलराइट, चलिए लेट्स मीट टुमारो वी विल फिनिश दिस पार्ट एंड रिमाइंडर थ्योरम।